Hello and welcome to today's episode of Mangalmay podcast series. And we are honored to have with us the visionary academic leader, Dr. Ruchika Gupta, esteemed director at Mangalmay Institute of Management and Technology. So today we'll be talking about what makes MIMT's management program stand out and how the institute is adapting to the evolving business landscape. So stay with us for an insightful and inspiring conversation. Welcome, ma'am. So, to begin with, in a competitive education landscape like Delhi NCR, what makes MIMT stand out as an exceptional institution? First of all, thank you, Ms. Sonali, for this wonderful opportunity. This podcast is a medium to interact with a lot of students who are having these questions in their minds. So, coming to your question, there are a number of factors which sets MIMT apart from the rest of the institutions. We have a legacy of 23 years. In these 23 years, our focus has always been on imparting quality education to our students and continuous evolvement as per the industry requirement changes. There are certain factors which sets us apart, like our industry academia collaboration, our excellent placement records, and the value-based education that we impart to our students. We have collaborated with a number of reputed organizations like KPMG, Crackit, edX, Harvard Business Publishing to offer value-added certification courses to our students. As you are aware, the industry keeps on changing in this VUCA world. The industry requirements are constantly changing. And in order to make our students employable, ready for the industry, our focus is to provide value-added certification courses. There are a number of certification programs and a variety of certification programs that we offer to our students. Other than this, our commitment for imparting quality education is also witnessed by the various accolades we have received. If I take example, the very recent ones that we receive is by Education World. We have been honored by the prestigious award of excellence in skill-based education. I can proudly mention that we have been the first institution in Greater Noida and fifth in India. Other than this, we have also received the prestigious award for excellence in industry academia collaboration by Services Export Promotion Council, a setup by Ministry of Commerce and Trade. So this shows our commitment. Apart from this, the kind of placement we are providing, that also sets us apart. In all these years, there have been number of students who have passed out from Mangalmay Institute of Management and Technology. These students are placed in global companies like Accenture, Amazon, Wipro, TCS, Infosys, ICICI Bank, Axis Bank, and many more. So all these factors sets us apart from the rest of the institutions and also shows our commitment to provide value-based education to the students. So, basically, these awards and the accolades received by the MIMT, the rankings received by the MIMT, actually prove why the MIMT stands out. So, moving forward, ma'am, higher education today requires the fine balance between preserving the academic traditions and embracing the innovation. So, how does the MIMT maintain this balance effectively? We at MIMT believes in striking a balance because we believe that academic excellence can be achieved only when we strike a balance between the latest innovations as well as keeps our students grounded with the traditional values. So, to ensure that our students on one side they are understanding the latest developments, the latest technologies, तो हमारी कोशिश होती है कि एक तरफ जहां हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि क्या लेटेस्ट इंडस्ट्री में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं,
या नई टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, फिनटेक, मशीन लर्निंग, HR एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, तो एक तरफ जहां हम उन्हें इन कोर्सेज में स्किल करा रहे होते हैं या स्टूडेंट्स को हम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए, वहीं दूसरी तरफ हमारा फोकस होता है कि हमारे स्टूडेंट्स एक एम्पैथी, कंपैशन, इन सारी वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व करें। तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वो कंडक्ट कराते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपने कल्चरल हेरिटेज, अपनी रूट्स, अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को समझ सकें और इम्बाइब कर सकें। सो मुझे लगता है कि मॉडर्निटी with the traditional approach, this is a key to the academic excellence. इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टूडेंट्स कंट्री का फ्यूचर हैं, तो इससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ एकेडमिकली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, दे विल बी गुड सिटीजन्स. So, ma'am, could you elaborate on some of the innovative teaching methodologies that is adopted at Mangalmay, where the students' learning and engagement is being better? केस स्टडीज, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, ये कुछ ऐसे इनोवेटिव मेथोडोलॉजीज हैं जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स इम्प्लीमेंट करते हैं. इससे बेनिफिट ये होता है, जैसे स्टूडेंट्स जब लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि रियल बिजनेस चैलेंजेस क्या होते हैं. इससे एक तो स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है रियल वर्ड की वो इम्प्रूव होती है. दूसरा, स्टूडेंट्स को पता होता है कि आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, आफ्टर टेकिंग देयर डिग्री, वो जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो किस तरीके के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे. दूसरा, जब ये केसेस, इस तरीके के केसेस फैकल्टी मेंबर्स क्लासरूम्स में डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज मिलती है उस केस को मल्टीपल एंगल से एनालाइज करने की. सो आई बिलीव एज एन एजुकेटर दैट दिस हेल्प्स improving their analytical capabilities. Apart from discussing the live projects and case studies, we also provide industrial visits to our students. So उन इंडस्ट्रियल विजिट्स पे जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो लाइव देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रोसेसेस किस तरीके से हो रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स. सो उन कॉन्सेप्ट्स को जब स्टूडेंट वहाँ लाइव होते हुए देखते हैं उन प्रोसेसेस को, तो आई थिंक इससे अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती स्टूडेंट्स के लिए. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इनोवेटिव, राइट. So other than this, we also provide various seminars and expert lectures to the students. Different industry experts students से interact करते हैं. तो एक तरफ जहाँ उनके rich experience के basis पे students को एक guidance मिलती है कि क्या उस इंडस्ट्री में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स को स्किल करने के लिए किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री, राइट. तो एक तरफ जहाँ स्टूडेंट्स को उस तरीके का एक्सपोजर मिलता है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है. So with the combination of all these innovative methodologies, I believe the faculty members of Mangalmay Institute of Management and Technology help the students to groom themselves and make themselves ready to face the industry. Okay, ma'am. So basically, ma'am, in the opening remarks, you mentioned that MIMT offers PG as well as UG courses. So my next question is for the PG course that we have is MBA program. So MBA program demands both technical proficiency and interpersonal effectiveness. So how does MIMT strikes a balance between the hard skills like finance or maybe the marketing and the soft skills like leadership and communication skills in the curriculum? So if I look at the industry requirements, the industry requires both the skill set in the students. And as educators, it is our responsibility to impart those skills in our students so that the students can be employable. So as far as the technical skills are concerned, the curriculum has a lot of provision for imparting the technical skills. For example, if the student have taken a specialization of HR, marketing, finance, so technical skills तो उन्हें concept से भी मिल जाती है, right? Other than the technical skills, we also focus on the interpersonal skills, the soft skills of the students.
because particularly for the management students, a combination of both the skills is very much important. सो इन सॉफ्ट स्किल्स के लिए हम स्टूडेंट्स को बहुत सारे सेशंस कराते हैं, जैसे इन माय प्रीवियस आंसर आई मेंशन कि वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस. So we have a provision of imparting value added certifications for these kind of skills. We also have provision for the personality development programs, जिसमें हम reputed organizations के साथ collab हमारे हैं, जिनके trainers आके हमारे students को train करते हैं to make them ready for the industry. सो सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, ये दोनों स्किल्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी की, तो कंपनी अदर देन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ये दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट. जैसे द स्टूडेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड एंड ब्रश अप द इंटरपर्सनल स्किल्स, द टीम बिल्डिंग स्किल्स. तो उन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को. So, ma'am, as we know that in today's competitive world, mental wellness plays a very important role. So, student well-being is the growing concern is higher education. So, how does the institute promote the mental wellness and ensure the balance in the student lifestyle? Yes, indeed, mental wellness is of utmost importance, especially with the generation we are catering to. So इसीलिए मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में हम स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं. सो अदर देन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन, हमारा फोकस होता है कि स्टूडेंट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें. उसी के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टूडेंट्स के लिए एक तरफ जहाँ मेंटर मेंटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हम हर स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज्ड कोचिंग के लिए एक मेंटर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. द फैकल्टी मेंटर्स are associated with the students. So उन फैकल्टी मेंटर्स से स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक से लेके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स तक डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि जहाँ डिस्ट्रेस होता है वहाँ स्टूडेंट को कोई चाहिए कि कोई मुझे गाइड कर सके, कोई ऐसा जो मुझसे बड़ा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो मुझे सही रास्ता दिखा सके. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें एक सपोर्ट हमने देखा है कि बहुत इफेक्टिव रहा है. और एक जो बॉन्डिंग होती है मेंटर और मेंटी के बीच में, दैट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ मेंटी. सो अदर देन दिस मेंटर मेंटी सिस्टम, वी ऑल्सो हैव मल्टीपल क्लब्स एंड कमिटीज इन द इंस्टीट्यूट. ये क्लब्स एंड कमिटीज स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं. दीज आर ऑल स्टूडेंट लेड क्लब्स एंड कमिटीज, जिन्हें स्टूडेंट ही मैनेज करते हैं, स्टूडेंट रन करते हैं. सो दीज क्लब्स are basically imparting extracurricular activities. जैसे हमारे यहाँ लिटरेरी क्लब है, HR क्लब है, फाइनेंस क्लब है, मार्केटिंग क्लब है. सो दीज आर डोमेन बेस्ड क्लब्स जो डोमेन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कराते हैं. इसके अलावा हमारे पास वेलनेस क्लब भी है, जो इस तरीके के योगा, मेडिटेशन, इस तरीके की एक्सरसाइजेस और इस तरीके के सेशंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, या स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा सके टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. इसके अलावा मंगल में इंस्टीट्यूट के कुछ कोलैबोरेशंस भी हैं विद द वेलनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके ट्रेनर्स भी हमारे स्टूडेंट्स को कोचिंग और ये मेंटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड. So basically at MIMT, the faculty members are actually playing a role of a mentor, and they are also playing a role, they are providing you the platform where you can come up with your personal problems and talk to them. So moving forward, ma'am, so ma'am, as we know that research plays a vital role in the academic growth. So how's the research culture at MIMT is integrated into the classroom to develop the analytical and critical thinking skills among the students? At Mangalma Institute of Management and Technology, we believe that research is an integral part of the learning process. So इसीलिए हमारा जो फोकस होता है वो फैकल्टी रिसर्च के साथ साथ स्टूडेंट रिसर्च पे भी होता है. उसके लिए हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो कुछ रिसर्च पेपर्स लिखें, ऑब्वियसली अंडर द गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स. स्पेशली यहाँ पे जो फैकल्टी मेंटर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में. सो हमारी एफर्ट्स होते हैं कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, गाइड करें, उन्हें
एक टॉपिक आइडेंटिफाई करने से लेके उस पेपर को कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने तक. Throughout this process, the faculty keeps on motivating and guiding the students. हम स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जहां वो प्रेजेंट कर सकें अपने पेपर्स. एडिशनली हम स्टूडेंट्स को जो असाइनमेंट्स देते हैं वहाँ फोकस ये करते हैं कि असाइनमेंट्स जो है वो किसी रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम पे हो, ताकि जब वो स्टूडेंट उन असाइनमेंट्स को करें तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक बेस प्रिपेयर हो जिसपे वो फर्दर अपनी केस स्टडीज डेवलप कर सकें या उन्हें रिसर्च पेपर्स में कन्वर्ट कर सकें. वही सेम अप्रोच जब स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप पे भेजा जाता है तो वहाँ भी यही अप्रोच होती है कि समर इंटर्नशिप में वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी जब उन्हें कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट ट्रेंड्स एनालाइज करने का मौका मिलता है. तो हमारी अप्रोच ये होती है कि स्टूडेंट्स जब समर ट्रेनिंग से वापस आएँ तो उन्होंने वहाँ जो सीखा है उसे प्रेजेंट करें. अदर देन दिस, जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल विजिट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी फैकल्टी उन्हें असाइनमेंट्स के साथ भेजती है, ताकि जो सारी चीज़ें वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ रहे हैं वो वहाँ इंडस्ट्री में जाके देखें किस तरीके से इंडस्ट्री में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, और उन्हें पेपर्स में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करें. सो इससे स्टूडेंट्स का एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं, जो एक which is the ultimate purpose of the organization. So, ma'am, entrepreneurship is the key focus for many students today. So, could you tell us more about the incubation facilities available at Mangalmay Institute and how they support the budding entrepreneurs? Very good question. There are a lot of students which are coming with the hopes of coming up with their own startups. सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं चाहिए होता. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमने देखा है इतने सालों में कि स्टूडेंट्स के पास बहुत फ्रेश आइडियाज़ होते हैं. अगर उन आइडियाज़ को नर्चर करा जाए तो बहुत स्टार्टअप्स डेवलप हो सकते हैं. सो मंगलमय इंस्टीट्यूट में भी हमारा फोकस यही होता है कि हम स्टूडेंट को वो एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करें जहाँ स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को नर्चर किया जा सके, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा सके. सो वी हैड एन इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल जो हर क्वार्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराता है, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वेरियस आइडियाथॉन्स, स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स. ये कॉम्पिटिशन्स हमारे स्टूडेंट्स को के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके बिजनेस आइडियाज़ को शोकेस करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं. अदर देन दिस, हम अपने स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेजेस में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, जिससे स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस भी आता है. प्लस जब स्टूडेंट इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए नई लर्निंग भी होती है, बिकॉज जितने जजेस होते हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल. तो उनके जो जब रिमार्क स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो एक तरफ जहाँ मोटिवेशन मिलता है वहीं दूसरी तरफ उसमें एडवांसमेंट करने की भी स्कोप नज़र आते हैं. So other than IIC, we also have incubation facilities at the campus, जिसमें स्टूडेंट्स को उनके आइडियाज़ के लिए मेंटोर किया जाता है at every stage of the idea. एक रॉ आइडिया से लेके उसे एक स्टार्टअप तक डेवलप करने के लिए सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. So other than this, we also have collaborations with various other organizations and incubators. Students के पास ये भी फैसिलिटीज़ होती हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस या दूसरे इंक्यूबेटर्स से भी हम नेटवर्किंग करा देते हैं. सो द फोकस ऑफ MIMT is to nurture the students' ideas so that these ideas can see the real existence in the real world. So MIMT is not only providing the platform to actually get the jobs, but also not making them the job seekers, but also providing them to give the jobs to other and become the successful entrepreneurs. So finally, for the aspiring MBA candidates, what would you say that are the important factors to consider while selecting a business school? This is a very tricky question. बट बेसिकली जब हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने में उन्हें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, तो जो बेसिक फैक्टर्स आते हैं वो स्टार्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्रेडिटेशन से लेके किस तरीके की वो प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ हैं,
The focus is also on the experienced faculty, the research facilities, the learning, teaching and learning resources. सो इन सब से लेके एक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरीके का प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कोई स्टूडेंट ये ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे अपनी MBA करनी है. एंड MBA बीइंग कंसिडर्ड टू बी अ डिग्री जिसके बाद स्टूडेंट अपना कैरियर ही, मतलब हायर स्टडीज़ के बारे में नहीं सोचते मोस्टली स्टूडेंट्स, अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचते हैं. तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स किसी भी स्टूडेंट को फोकस करने चाहिए. एंड लकीली, वेरी प्राउडली आई कैन मेंशन that Mangalmay Institute of Management and Technology is at par when we compare organizations on these grounds. So thank you, Dr. Ruchika Gupta ma'am, for the detailed overview that you have provided us about the MIMT. So it is clear that MIMT just isn't offering you the degree, it's shaping the leaders for the changing world. To our listeners, remember that the journey to start with the right foundation. If you are ready to grow, lead, and make an impact, MIMT is here to support that journey. Thank you.